हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं वैभव वर्मा। आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या है? व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम क्या है? It is a diagram, okay? It is a diagram in which universal set is represented in rectangle and its subset is represented in the form of circle or ellipse. Okay? Venn diagram is a diagram in which universal set is represented in rectangle and the subsets are represented in circle or ellipse. Okay? Clear? तो देख लेते हैं वेन डायग्राम क्या है। It is a diagram in which universal set is represented in rectangle and its subsets are represented in circle or ellipse. Okay? In Venn diagram, universal set is represented in rectangle and its subset are represented in circle or ellipse or any closed figure. Okay? एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज U be any universal set, U is equals to 1 2 3 4 5. Okay, and A is the subset of U. Okay, 2 3 or 4. Okay, so A is subset of U. U belongs to U is universal set. Okay, U is universal set. तो देखेंगे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनी रेक्टेंगल, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। इसमें हमको दिखाना है कि ए सबसेट ऑफ यू। तो 1 2 3 4 and 5. Suppose these are the elements. So we have to show A is the subset of U. It means 2 3 4. 2 3 4. Okay, this is set A and this whole is universal set. Okay, ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है and the circle part is A, set A. Okay, that is subset of universal set. This is a way how to represent Venn diagrams. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अगला टॉपिक क्या है? हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, सेट्स के कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। कुछ सेट्स के क्या पढ़ेंगे? हम ऑपरेशन पढ़ेंगे। सेट के क्या कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, देखते हैं। जिसमें से पहला ऑपरेशन क्या पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ सेट। UNION, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? सपोज कोई सेट A है और कोई सेट B है। ठीक है, सपोज वी हैव सेट A एंड सेट B. ओके, द यूनियन ऑफ सेट A एंड सेट B इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A and all the elements of set B and the common elements being taken only once. Okay, suppose we have set A and we have set B. In set A there are some elements, in set B there are some elements. Then set A union set B is the sets of, okay, the set of all the elements in set A and all the elements in set B, but the common elements being taken only once. ओके, तो आइए देख लेते हैं। इफ वी हैव टू सेट्स, ओके, वी हैव टू सेट A एंड set B. Okay, we have two sets, set A and set B. Then union
of set A and set B is all the elements in set A and all the elements in set B, all the elements in set A, all the elements in set B, but the common elements being taken once. Okay, if we have two sets, set A and set B, the union of set A and set B is all the elements in set A and all the elements in set B, but the common elements being taken once. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं. Suppose this is set A, 1 2 3. Okay, this is set B, 2 3 4. So what is A union B? A union B. This is the symbol of union. ये symbol है किसका? यूनियन का. This is the symbol of union. This is the symbol of union. So what is A union B? All the elements of set A. Set A के सारे elements 1 2 3 1 2 3 and all the elements in set B. Set B में जितने elements हैं सारे, लेकिन जो common है उनको एक बार लिखेंगे. तो common क्या है? 2 common है और 3 common है, दोनों में 2 and 3 are commons. So इसको एक ही बार लिखेंगे और 4 को ऐसे लिखेंगे 4. This is A union B. ठीक है, दिस इज ए यूनियन बी. इफ अगर इसको मैथमेटिकली शो करना होगा, मैथमेटिकली शो करना होगा तो कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी. ओके, सो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी. ठीक है, ठीक है. अगर इसको वेन डायग्राम पे शो करना होगा, वेन डायग्राम पे मान लीजिए इसको वेन डायग्राम पे शो करना है, तो ये हो गया हमारा एक यूनिवर्सल सेट U. दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट U. ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे? हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 and 4. सेट A क्या है? सेट A 1 2 3. सेट A is 1 2 3. सेट B क्या है? 2 3 4. सेट B is 2 3 4. But the common elements must be taken only once. So this is set B, this is set A. इन common elements को हम लोग क्या किए हैं? एक ही बार लिए हैं, 2 3. ठीक है, तो ये all the shaded region shows that this is A union B. ठीक है, all the shaded region. ठीक है, जैसे एक और देख लीजिए आप. Don't mind if the line is not straight. This is U universal set, set A, set B. ठीक है, set, this is set A, this is set B, and the A union B is all the shaded regions are A union B. Okay, A union B, all the shaded region are A union B. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी यूनियंस ऑफ सेट में सम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. यूनियंस ऑफ सेट के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, जिसमें हमारा क्या है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A यूनियन B. A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A. ठीक है, A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A. ये क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, या A यूनियन B का जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा, सेम टू सेम B यूनियन A का भी. ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, चाहे A यूनियन B कीजिए चाहे B यूनियन A कीजिए. ठीक है, दोनों के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा. दूसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए. तो सेकंड प्रॉपर्टी इज A यूनियन B यूनियन C. ठीक है, या तो A यूनियन B पहले ले लीजिए या B यूनियन C पहले ले लीजिए, अंतर कोई नहीं है. ठीक है, कोई अंतर नहीं है. ठीक है, दोनों में चाहे A यूनियन B पहले ले लीजिए या B यूनियन C पहले ले लीजिए, दोनों में क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है. इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। द थर्ड वन इज ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। द फोर्थ वन इज ए यूनियन ए, दैट इज ए, ओके। फोर्थ वन इज ए यूनियन ए, दैट इज ए, इट इज कॉल्ड आइडेम्पोनेंट लॉ, आइडेम्पोनेंट लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोनेंट लॉ। इसको भी आप लॉ ही बोल सकते हैं, ठीक है। इन सबको भी आप लॉ बोल दीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, लॉ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लॉ भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द फिफ्थ वन इज लास्ट वन, यूनिवर्सल सेट ए, दिस इज यूनिवर्सल सेट, नॉट ए, दिस इज यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू, ओके, यूनियन ए, दिस इज यूनिवर्सल यू, ठीक है। कैपिटल यू इट रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। दिस कैपिटल यू रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, दैट इज यूनियन, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज कॉल्ड इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ओके। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यू, ठीक है। दिस इज वी कॉल्ड दिस लॉ ऑफ यू, ओके। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस ऑफ सेट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के प्रॉपर्टीज, बाकी के ऑपरेशंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, और उनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑलवेज ऑफ योर हेल्थ।